So this is all about space mission. So space mission is used for many purpose, like calamities को पहले से predict करने के लिए, and observation करने के लिए during war time, and mineral fossil reserves को find out करने के लिए बहुत सारे जगह पे space mission को use किया जाता है. And there is something called as artificial satellite, which means a man-made object which keeps revolving around the orbit, and this is called as artificial satellite. So first artificial satellite was Sputnik, which was given by USSR, and these satellites all works on solar energy because उनको continuous energy supply चाहिए और इतना supply हम पेट्रोल से डीजल से हम लोग नहीं दे सकते. So we use only solar energy, and that too by using photovoltaic panels. So there are photovoltaic panels are attached on both the sides of satellites, and these photovoltaic cells will supply them energy. And instruments are installed in the satellites to receive and transmit signals. तो वो क्या करते हैं, वहां से signals लेते हैं और अर्थ पे ट्रांसमिट करते हैं. So there is instrument used. यहाँ पर कुछ symbols दिख रहा है आपको. This is the symbol of ISRO. ISRO built Indian first satellite, and the name of this satellite was Aryabhatta. It was launched by Soviet Union on 19th April 1975, and it was named after the first mathematician of India, whose name is Aryabhatta, who invented the zero. In 1980, Rohini became the first satellite to be placed in orbit by Indian-made satellite launching vehicle, which is called as PSLV-3. So satellite launching vehicle भी इंडिया का था, and that was Rohini. That was made in 1980. तो सैटेलाइट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू डिफरेंट टाइप्स. फर्स्ट वेदर सैटेलाइट, इसका नाम है हमारे पास इनसैट और जीसैट. ये क्या करता है, वेदर के रिपोर्ट्स अर्थ पे भेजते रहता है कि रेन होने वाला या नहीं, या कुछ ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज के बारे में, वेदर के बारे में बताता है इनसैट और जीसैट. ये वेदर सैटेलाइट है. सेकंड आते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट. ये इनसैट और जीसैट का ही काम करता है, और ये इनसैट जीसैट कम्युनिकेशन में भी काम करते हैं. इट हेल्प्स in communication between different locations in the world through use of specific waves. तो जो आज इंटरनेट यूज करते हैं, जो मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, so they all works with some communication network. तो ये सब communication satellites का काम है. The third is broadcasting satellite, which works only for broadcasting of television programs. Okay, satellites पर्टिकुलर सिग्नल से काम करते हैं, एंड दे टेलीकास्ट स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, एंड इसके लिए भी इनसैट जीसैट काम करते हैं. एंड वी हैव समथिंग कॉल्ड एज नेविगेशन सैटेलाइट, व्हिच फिक्सेस द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इन टर्म्स ऑफ वेरी प्रिसाइज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे वो प्रिसाइज लोकेशन बताता है, एंड दैट इज IRNSS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है ये, एंड दैट इज नेविगेशन सैटेलाइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ मिलिट्री सैटेलाइट which collects information for security purpose. And then we have Earth observation satellite, which study the forests, deserts, and polar oceans, and forest natural resources और ये natural calamities के बारे में observe करके रहता है, और this is called as Earth observation satellite. So this is how these satellites keep revolving around the Earth 24/7, and they provide information continuously. So these satellites keep revolving around the Earth, and apart from that they start giving information around Earth के आजू बाजू में क्या हो रहा है वो सब information देते रहता है. And all artificial satellites do not revolve in similar orbits around the Earth. हर एक सैटेलाइट का अपना खुद का ऑर्बिट होता है, वो अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, and they have their own orbit, and these orbits are elliptical in nature. To put the satellite in its proper orbit at specific height above the Earth's surface, the satellite is taken to that height using a satellite launcher. तो सैटेलाइट लॉन्चर को यूज करके उस हाइट पे लेके जाते हैं. वहां पर जाने के बाद फिर वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर आता है, एंड देन दिस सैटेलाइट्स इज गिवन स्पेसिफिक वेलोसिटी. उसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं. तो क्रिटिकल वेलोसिटी यूज करके उसे इजेक्ट किया जाता है, एंड वहां से फिर वो इंफॉर्मेशन देते रहता है. एंड दीज satellites, they move in different heights, they move at different heights. तो हाइट के बेस पर उसको हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, हायर अर्थ ऑर्बिट ऐसे करके हम उसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सैटेलाइट हैज अ मास m which is revolving around the orbit in the orbit of Earth
एट अ हाइट h और उसका क्रिटिकल स्पीड है, वेलोसिटी है vc, तो इसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स जो है कैलकुलेट कर सकते हैं विद द फॉर्मूला mvc². vc इज नथिंग बट क्रिटिकल वेलोसिटी अपॉन r, mvc² अपॉन r. ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसके अंदर एक्ट करते रहता है जिसकी वजह से वो अर्थ के टुवर्ड्स घूम रहा है. हियर r इज नथिंग बट रेडियस ऑफ अर्थ and centripetal force provided by the gravity of the earth, therefore centripetal force is nothing but gravitational force. तो यहाँ पर gravitational force हमें पता है which is 9.8. तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था which is the name of the chapter is gravitation. तो r plus h कैंसिल होगा, तो hence vc² is equal to j into m upon r plus h. Hence vc is equal to under root of gm into gm upon r plus h. तो g का वैल्यू, m का वैल्यू, r का वैल्यू, h का वैल्यू पुटअप करेंगे तो देन हेंस वी गेट vc और vc का वैल्यू मिलेगा फाइनली विच इज अराउंड पर्टिकुलर वैल्यू वी कैन गेट एंड दैट इज योर अर्थ क्रिटिकल वेलोसिटी. उस वेलोसिटी से हमें एस्केप करना पड़ेगा तब जाकर वो अर्थ के बाहर जाएगा. इट कैन बी सीन दैट क्रिटिकल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ सैटेलाइट. एज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इंक्रीजेस, द क्रिटिकल वेलोसिटी डिक्रीजेस. क्रिटिकल वेलोसिटी डिक्रीज होते रहेगा एज द हाइट इंक्रीजेस. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव हाई अर्थ ऑर्बिट्स. हाई अर्थ ऑर्बिट जो है 35,780 किलोमीटर्स के अबव घूमते रहते. दीज आर कॉल्ड हाई अर्थ ऑर्बिट्स एंड दीज दे टेक एग्जैक्टली 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन. So they take exactly 24 hours to complete one revolution. If the satellite revolving in an orbit parallel to equator at the time of revolution for the earth around itself, and that for satellite to revolve around the earthing will being the same, the satellite will appear to be stationary. तो ये जो अर्थ के अराउंड सराउंडिंग में जो घूम रहा है तो एग्जैक्टली उतने स्पीड से घूमता है, तो इट विल टेक एग्जैक्टली 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. तो ऐसे लगता है, ये दूर से लगता है कि इट इज स्टेशनरी बट इज नॉट स्टेशनरी. इट कीप्स revolving with the same speed as that of earth. It appears to be stationary but these are not stationary. These are called geosynchronous. मतलब exactly वो एक ही लोकेशन पे दिखते हैं. For example, if two trains are going ahead और दोनों ट्रेन सेम स्पीड से जा रहे हैं तो एक ट्रेन में बैठा हुआ लोगों को लगता है दूसरा ट्रेन स्टेबल है, बट दोनों ट्रेन सेम स्पीड से जा रहे हैं एंड दैट्स व्हाई दिस हैपेंस. सो द सेम थिंग हैपेंस विद दिस सैटेलाइट. जो हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है वो सेम स्पीड से घूमते रहते हैं और एग्जैक्टली 24 आवर्स लेते हैं. एंड दैट इज यूज्ड फॉर मटेरियोलॉजी टू चेक अबाउट वेदर एंड एवरीथिंग, एंड इट इज यूज्ड इन टेलीफोन, टेलीविजन एटसेट्रा. द सेकंड सैटेलाइट इज मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट. ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट में घूमते रहते हैं. एंड द हाई अर्थ ऑर्बिट और उसके बाद में आता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट. तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट के एग्जाम्पल्स में ये 2000 से ऊपर और 35,780 के नीचे घूमते रहते मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स. एंड दीज आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स. दीज आर देयरफॉर नॉट यूजफुल इन द स्टडी ऑफ पोलर रीजन्स. तो जियो स्टेशनरी है तो एक पर्टिकुलर लोकेशन में ये स्टेशनरी की वजह से घूमते रहे. देयरफॉर वी कैन नॉट स्टडी द पोलर रीजन्स बट वी कैन सी अदर देन पोलर रीजन. फॉर दिस पर्पस elliptical medium orbits pass polar region can be used. These orbits are called polar orbits. तो एक elliptical orbit को यूज किया जाता है इसके अंदर and they take almost 2 to 24 hours to complete one rotation. Some of these satellites revolve in circular orbits around a height of 20 to 200 kilometers above the earth. Global position satellites revolve in such. तो वो GPS satellites इसी लोकेशन में घूमते रहते. अब नेक्स्ट आता है लो अर्थ ऑर्बिट. तो मीडियम अर्थ 2000 किलोमीटर के अंदर रहता है और लो अर्थ ऑर्बिट 180 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के अंदर. एंड दीज आर कॉल्ड एज लोअर अर्थ ऑर्बिट. तो हायर अर्थ ऑर्बिट above 35780, above 35780 and below 2000 it is medium earth. From 2000 to 35780 it is high earth. तो लो अर्थ सैटेलाइट्स साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए यूज करते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेरिक स्टडी करते रहते हैं लो अर्थ सैटेलाइट्स. एंड डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ दिस ऑर्बिट्स दे कंप्लीट वन रोटेशन फ्रॉम 90 मिनट्स टू नियरली 90 मिनट्स. और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड हबल टेलीस्कोप ऑल्सो रिवॉल्व इन दिस लो अर्थ ऑर्बिट. जो हबल टेलीस्कोप है जहां से दूसरे प्लैनेट्स का और अर्थ का स्टडी करते हैं वो भी इसी लो अर्थ ऑर्बिट में रहता है विच इज अराउंड 180 किलोमीटर्स टू 2000 किलोमीटर्स. तो वी हैव लो अर्थ एल्टीट्यूड एंड मीडियम अर्थ एंड
हायर अर्थ, तो इस तरह से GEO, MEO एंड LEO, तो अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग हाइट्स पे अलग अलग सैटेलाइट्स को हम यूज करते हैं. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस. थैंक यू.